morning class 9. Last day we have discussed about the rational number, irrational number. Rational number can be written in the form of P upon Q and irrational number which cannot be written in the form of P upon Q. Okay, and another terms we have discussed about the terminating and non-terminating. Terminating numbers which term has its end point. Means if we divide a number by the another number, we will get a fixed answer or a end answer, मतलब which has its end. Okay. In the second, non-terminating. Non-terminating terms which has not end point means जिसका end point नहीं होगा, complete divide no. Okay. Let's see. Terminating means which has end points. Okay, let's see. 1 upon 2, 1 upon 5, 1 upon 10 and 1 upon 4, 1 upon 8, 1 upon 16, 1 upon 20, 1 upon 25, 1 upon 125, 1 upon 32, 1 upon 40, 1 upon 80, 1 upon 60 or 60 not. Okay, 1 upon 100 etc. So conclusion मैंने आपको लास्ट डे बताया था. What was the conclusion of this? If this denominator is the multiple of 2 and 5 and their exponents, जो ये डिनोमिनेटर होगा वो डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? डिनोमिनेटर शुड टू द पावर n, 5 to the power n और 2 into 5 to the power n. Okay, like this. इस स्ट्रक्चर में होना चाहिए वेयर n and n any whole number. अच्छा, whole number or natural number actually we can say that any natural number it can be. So this should be 2 and 5 multiples of number. These are the terminating number. Okay, so first type of question is that we are to recognize number is terminating or not terminating. So we can find this number is terminating or non-terminating via their denominator recognition. If denominator is multiple of 2, 5 and multiple of theirs 2 and 5, okay, then this number is terminating. अगर नंबर में 2 और 5 हैं और उनके मल्टीपल्स हैं या उनके एक्सपोनेंट के मल्टीपल्स हैं तो वो नंबर क्या होगा? टर्मिनेटिंग नंबर, मतलब वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा. ठीक है. इफ देयर इज डिनोमिनेटर इज डिफरेंट, मतलब अगर डिनोमिनेटर 2 और 5 के अलावा कुछ है तो फिर वो क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग टर्म हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल 1 upon 3, 1 upon 6, 1 upon 12, 1 upon 18, 1 upon 7, 1 upon 9, 1 upon 11, 1 upon 15, 1 upon 30, 1 upon 60, etc. Okay. In the last day we have discussed 1 upon 3, 1 upon 6, 1 upon 7. Some divisions we have discussed. Now I can give you an example that 1 upon 30, 1 upon 60 are also non-terminating term. ठीक है. Let's see. 1 upon 30. 1 upon 30 means 30 से 1 को divide. Okay. Now let us start. First 0.
point. Okay. After this is point, we get 10. 10, 0, then 100. How many times it will divide? 3 times. 90. This is 10. Now 0 and 3 times. Answer means if you divide 1 by 30, you will get answer 0.0333. Now I am going to next step. We can repeating number. We have a repeating number. We can represent this number like this. This is what? This is what? This is means this is a bar and this bar is shows that this number is repeated. Means ये नंबर क्या होगा? रिपीट करना है. ये नंबर क्या कर रहा है? रिपीट. ये जो बार है वो रिप्रेजेंट क्या करेगा? बार रिप्रेजेंट दैट दिस नंबर रिपीटेड. मतलब ये नंबर क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है. ठीक है. मीन्स दिस 3 इज रिपीटिंग नंबर. ओके. रिपीटिंग 1 by 1. 3 3 3 3 3 3 3. ओके. सो इस सबको कंक्लूड करके हमने क्या पुट कर दिया? यहाँ पर एक बार पुट कर दिया और ये बार क्या शो करता है कि ये एक रिपीटिंग नंबर है. नाउ लेट्स सी. क्वेश्चन इज दिस. इफ देयर इज ए नंबर which is this 0.3 bar. Okay. Now you are to represent in the form of P upon Q. Okay. Question is this. Represent in the form of P upon Q. Okay. Now we are to represent this structure in the form of P upon Q. Division form में हमें क्या ऐसे represent करना है. Okay. So how we can solve it? इसे कैसे solve करना है? Let's solution देखिए इसका. Let x is equals to 0.3 bar. ओके. x क्या है? 0.3 बार के इक्वल है. ओके. नाउ वी कैन राइट इट आल्सो 0.3333. yes or no? Yes. Okay. This is the 0.3 bar. This is 0.33333. Okay. Now this repetition of 3, if I want to say this, it is also a series of 3. ओके. रिपीट ही तो कर रहा है 3 के बाद में और कितना कर रहा है कुछ पता नहीं है. अगर मान लो आपको इन्फिनिटी में से एक नंबर सेलेक्ट करना है या एक नंबर कम कर दिया जाए तब भी नंबर इन्फिनिटी रहेंगे. उसी तरह से अगर इसमें से एक नंबर को हटा दिया जाए तब भी इन्फिनिटी टाइम रिपीट करेगा. अगर ये रिपीट करेगा तो आई कैन राइट इट लाइक दिस. एनी प्रॉब्लम? अभी ये 333 है क्योंकि ये 3 का रिपीटेशन है. एनी टाइम आप इसे इस तरह से राइट कर सकते हैं. ओके. दिस इज आल्सो व्हाट? x. एनी प्रॉब्लम? मैंने इस बार को ओपन किया और इस सेकंड नंबर पर ला करके राइट कर दिया. नाउ मुझे इस को इस तरह से सॉल्व करना है कि यहाँ पर जो पॉइंट के बाद में ये बार वाला नंबर है ये क्या हो जाए? फिनिश हो जाए. मतलब ये ना रहे. ठीक है.
क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ साइड को 10 से। देन इट मीन्स 10x इक्वल टू, इसे 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 हो जाएगा और ये 0.3 बाहर। ओके डन, एनी प्रॉब्लम? देखिए ये 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 10x हो गया और ये 10 से मल्टीप्लाई किया ये 3.3 बाहर। अगर मैं इस नंबर में से इस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, देन आई विल गेट विदाउट बार नंबर, मतलब ये बार वाला जो पार्ट है वो एंड हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसे इक्वेशन सेकंड कह देता हूँ और इसे इक्वेशन 1। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। Subtract equation 1 from equation 2. Now 10x minus x will equal to 3.3 bar minus 0.31. Okay, इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। This is 9x, this is 3, this is 9x, this is 3. Okay, x is equal to 3/9, x will equal to 1/3. That means 0.3 bar equal to 1/, x की वैल्यू 0.3 बार ही तो है, तो मैंने इसे ये मीन्स। अब एक बात समझो, जब हमने इसको सॉल्यूशन किया था 0.3 बार का 1/3 का, तो देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर मैं 3 को, ये होता है मतलब 3 का डिवाइड करेंगे 1 में, तो आंसर क्या आता है ऑलवेज 0.10, 3, 9, 1, 10। यही तो है, मीन्स यहाँ पर जब हम 3 3 3 3 3 राइट रिपीटेशन कर रहे हैं, 3 का रिपीटेशन हो रहा है, तो वो 3 का रिपीटेशन किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, पॉइंट बार के। वी कैन रिप्रेजेंट 0.3333 रिपीटेड टर्म ऑफ 3 इन द टर्म ऑफ बार। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस, मेन सॉल्यूशन इन दिस। इट इज नॉट पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। सो इस टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में, राइट दिस टर्म इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ओके, अनदर एग्जांपल, ले लेते हैं 0.16 बार। ओके, अब इससे हमें क्या करना है, P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ओके, लेट्स देखिए हाउ वी कैन रिप्रेजेंट। फर्स्ट टर्म लेट x is equal to 0.16 bar. Okay, we can write it 0.16666. नो प्रॉब्लम, मैंने जिस नंबर पर बार है उस नंबर को ही रिपीट करना है। ओके, सो रिपीट दिस, राइट दिस इन दिस वे। Now let's see, 6 is repeated more times,
we can write this number in this way 0.166 bar. We can write, मैंने इस 6 को आगे की तरफ रख दिया और इस 66666 को क्या कह दिया, बार, 6 बार. ओके, इस टर्म को मैंने क्या कह दिया, 6 बार. ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि मुझे इस 6 को हटाना होता है वहां से. ठीक है, ओके, लेट्स दिस इज इक्वल टू 6. ओके, नाउ मल्टीप्लाई बहुत सारी ओके, दिस इज 10x, दिस इज 1.66 bar. Okay, now let's say we can remove this directly or not. Directly remove कर सकते हैं कैसे? No. What we are to do? Multiply. This is our first equation. Okay. Multiply both sides by 10. Okay, then 100x is equals to 16.6 bar. Okay, पॉइंट के इमीडिएटली बाद में आपको क्या दिख रहा है, 6 बार दिख रहा है. और यहां पर पॉइंट के इमीडिएटली बाद में कोई नंबर दिख रहा है आपको जो इमीडिएटली बाद में सब्ट्रैक्ट किया जा सकता हो. ओके, दिस कैन बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस. सो आंसर विल बी, यू विल गेट okay. It can be written as 1.6 bar. Okay, this is the equation second. This is the equation third. Now let's see what we have done. X is equals to 1.16 bar. X is equals to 1.166 bar. Multiply both sides by the 10. Then we will get 10x 1.666 bar. It can be written as 1.6 bar. This is the again multiply because मुझे पॉइंट के जस्ट बाद में बार चाहिए. पॉइंट के जस्ट बाद में क्या चाहिए, बार वाला नंबर चाहिए. ठीक है, तो 100x is equals to 16.6 bar. Now subtract these two equations. ठीक है, on subtracting equation 2 from equation 3. So 100x minus 10x equal to 16.6 bar minus 1.6 bar. It can be written as 15.0 and this is 90. X is equals to 15 upon 90, that will equal to 1.6. ओके, सो लास्ट में मैंने आपको सॉल्व करके भी बताया था कि 6
divided by 1 divided by 6 is equals to 0 point. Here 10, this is 1 time, this is 4, 40, 6, 6, 6, 6 and so on, and it can be written as 1, 6, 1. Okay, so this is 36, this is 40, this is 36, this is 40, 36. Okay, so this is द बेसिक मेथड जो हमें यूज करना है. एक्चुअली इसका शॉर्टकट भी होता है, एक सेकंड मेथड भी होता है जिसे हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं ऑप्शन वाले क्वेश्चंस के लिए, लेकिन अभी हम ये सीख रहे हैं जिससे कि हमें प्रोसेस आना चाहिए उसका. तो प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जिस पर बार है उसी पॉइंट के बाद लेके आना है. जो बार है, बार वाला नंबर है, उसी पॉइंट के बाद लेके आना होता है. ठीक है, नेक्स्ट देखो. Okay, next question we will do in the next video. Thank you.